میری بات سنकर خان صاحب کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ انہوں نے کہا واقعی پھر تو سمجھو کام بن گیا۔ سگریٹ لائٹر تو ہمارے مقصد کے لیے موزوں ترین ہے، کیونکہ یہ تو اجلاس میں شامل فرد کے ساتھ گفتگو کے مرکز میں ہر وقت موجود ہوگا۔ میں نے کہا ہاں، اب اتنی مہربانی اور کیجیے، اگر آپ کے پاس اس وقت ایک اضافی مارک 1 ریڈیو ٹرانسمیٹر موجود ہے تو اپنے اس یادگار سگریٹ لائٹر میں پوشیدہ کر کے میرے حوالے کر دیں۔ میری بات سن کر وہ کچھ چونکے، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا جمال بھیا، استعمال کرنے والے کے پاس برسوں سے موجود ایسی ذاتی اشیاء سے ہمیں ایک عجیب سی مانوسیت اور یگانگت ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاتھوں کا لمس انہیں لمحہ بھر میں پہچان لیتا ہے۔ ایسے میں اگر انہیں عین مشابہ کسی چیز سے بھی بدل دیا جائے تو سارے حواس چوکنا ہو کر اسے اجنبی قرار دے کر مسترد کر دیں گے۔ اتنا بڑا خطرہ مول لینے سے بہتر ہے کہ آپ لکشمن کی خوابگاہ میں گھسنے کا نسبتاً کم تر خطرہ مول لے لیں۔ ان کے موقف کی تائید کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا میں نے کہا یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لکشمن کو ذرا بھی شک ہو گیا تو ہماری ساری منصوبہ بندی دھری رہ جائے گی، اور ہو سکتا ہے مجھے اپنا انتہائی موزوں اور کارآمد ٹھکانہ چھوڑ کر وہاں سے فرار ہونا پڑے۔ ویسے میرے خیال میں لکشمن کی خوابگاہ میں گھس کر اس کے سگریٹ لائٹر میں مارک 1 ٹرانسمیٹر چھپانے میں کچھ زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ وہ نشے میں دھت ہو کر سویا ہوگا، بس مجھے اس کے پہلو میں راگنی کی موجودگی کا گھناؤنا منظر ایک بار پھر برداشت کرنا پڑے گا۔ خان صاحب نے پہلے تو اپنا مخصوص قہقہہ لگایا، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، ہمیں اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران کیسے کیسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے، کیسی کیسی اذیتیں سہنا پڑتی ہیں، کس کس طرح کی شخصیات کی مزے کا خیز حرکات برداشت کرنی پڑتی ہیں، کسی عام آدمی کو بتائیں تو اسے شاید یقین بھی نہ آئے۔ مجھے دلچسپی لیتے دیکھ کر خان صاحب نے بات آگے بڑھائی۔ بولے آج سے 5 سال پہلے ہماری دفاعی قیادت نے نہرو سرکار کے مختلف وزیروں کی جاسوسی کے لیے ان کے عملے میں اپنے بندے شامل کرنے کی مہم شروع کی۔ سخت جد و جہد کے بعد ہمارے ایک ساتھی احمد علی کو نہرو کابینہ کے وزیر اطلاعات بالا کرشنا وشوناتھ کیسکر کے ذاتی خادم کی حیثیت سے بھرتی کروا دیا گیا، اور وہ 1 سال کیسکر کے ساتھ رہے۔ احمد علی نے بتایا کہ یہ پورا سال اس نے ایسی عجیب و غریب ذہنی اذیت میں گزارا کہ کسی کو بتائیں تو ہنسے گا، اور واقعی ہم اس کے بتائے ہوئے حالات سن کر واقعی ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ان کے خاموش ہونے پر میں نے سوالیہ نظروں سے خان صاحب کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی دوران میں خانم بھی گرما گرم لذیذ کھانے کے تھال اٹھائے وہاں آ گئیں۔ خان صاحب نے کھانا لگنے تک انتظار کیا اور پھر خانم کو کہا، آؤ بھائی تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، بھائی احمد علی کا قصہ سنا رہا ہوں جمال بھائی کو۔ ان کی بات سن کر خانم کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے کہا، مگر وہ سب سنتے ہوئے تو ان کے لیے کھانا کھانا مشکل ہو جائے گا، بار بار اچھو لگے گا، بہتر ہے کھانے کے بعد تفصیل سے ان کی بپتا سنا دیجیے گا۔ خان صاحب نے کہا، چلے میں احتیاطاً صرف چیدہ باتیں بتاؤں گا، اور جمال بھیا آپ بھی سنتے ہوئے احتیاط کرنا کہ اچانک ہنسی آنے پر ٹھسکا نہ لگ جائے۔ میں نے کہا، بھائی اتنا اشتیاق بڑھا دیا ہے، آپ دونوں نے کھانے کی طلب ہی برائے نام رہ گئی، آپ بتائیے میں احتیاط رکھوں گا۔ خان صاحب نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بھائی پہلے تو بھائی احمد علی کا مختصر تعارف سن لو تاکہ بعد کے واقعات ان کے درست تناظر میں سمجھ سکوں۔ احمد علی کے والد تقسیم ہند سے پہلے بہار کے شہر پٹنہ کے نواح میں ایک مسجد کے پیش امام تھے۔ انہوں نے احمد علی کو اسکول کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی ہمکنار کیا اور درست دینی اطوار کی پیروی سکھائی۔ ان کے گھر میں گانے بجانے کا ذکر بھی ممنوع تھا۔ خود احمد علی نے بھی عاقل بالغ ہونے کے بعد بھی کبھی موسیقی کا شوق نہیں پالا۔ سرکاری ملازمت ملنے کے بعد انہوں نے مرفی کا ریڈیو تو ضرور خریدا، لیکن اسے صرف خبریں اور کمنٹری وغیرہ سننے کے لیے ہی استعمال کیا جاتا۔ بات کمنٹری کی آئی تو یہ بھی جان لو کہ احمد علی بھائی کو کرکٹ کا دیوانگی کی حد تک شوق ہے۔ انہوں نے شاید اپنے بیان سے لطف اندوز ہونے کے لیے توقف کیا، پھر بولے، لیکن پھر قدرت نے ان کا بھرپور امتحان لینے کی ٹھانی اور وہ بالا کرشنا وشوناتھ کیسکر عرف بی وی کیسکر کا ذاتی خادم بن گیا، جو کرکٹ کے نام سے چڑھتا تھا اور اسے گوروں کی یادگار اور ان کی غلامی کی علامت قرار دیتا۔ حتیٰ کہ کرکٹ کی مخالفت میں وہ اس حد تک آگے بڑھ گیا تھا کہ اس نے آل انڈیا ریڈیو پر کرکٹ کمنٹری پر پابندی لگا دی۔ قدر توقف کے بعد انہوں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا۔ بولے، وہ تو کرکٹ کے دیوانوں کی خوش قسمتی ہے کہ نہرو خود بھی کرکٹ کا شیدائی تھا اور ونو منکڈ اور وجے ہزارے وغیرہ سے اس کی ذاتی دوستی ہے۔
बल्कि वो तो बरतानवी मेंबरान असम्बली पर मुश्तमिल क्रिकेट टीम के खिलाफ एक चैरिटी मैच में इंडियन प्राइम मिनिस्टर 11 की क़यादत भी कर चुका है। उस मैच में हिंदुस्तानी वजीर दिफा बलदेव सिंह ने धुआंधार सेंचुरी बनाई थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि नेहरू और खुसूसन उसके वजीर दिफा के पुरजोर मुतालबे पर किसकर अपना ये फैसला वापस लेने पर मजबूर हो गया था, लेकिन उसकी मौजूदगी में क्रिकेट का जिक्र जबरदस्त डांट को दावत देने के मुतरादिफ था। इस तरह क्रिकेट का आशिक अहमद अली एक साल तक इस खेल की परछाई से भी दूर रहा। खानम यकीनन ये सब पहले भी कई बार सुन चुकी होंगी, लेकिन उसके बावजूद वो एक एक लफ्ज से मेरी तरह भरपूर लुत्फानंदोज हो रही थी। ताहम उन्होंने दरमियान में मुदाखलत नहीं की। खान साहब ने बात आगे बढ़ाई। बोले, अहमद अली के लिए केसकर की क्लासिकी मौसीकी से जुनून की हद तक मोहब्बत और क्रिकेट से नफरत भी ज्यादा अजियतनाक थी। केसकर के क्लासिकी मौसीकी से लगाव की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आला तालीम होने के बावजूद उसने क्लासिकी मौसीकी की एक सिन्फ द्रुपद की बाकायदा तरबियत हासिल कर रखी है और आज भी रोजाना अलसुबह मौसीकी का रियाज करता है। मैंने खान साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी होते देखी। वो बोले, अब मौसीकी से जिंदगी भर पल्लू बचाने वाले अहमद अली पर ये उफ्ताद आन पड़ी कि उसे न सिर्फ केसकर के मौसीकी के रियाज के दौरान बाकायदगी से हाजिर रहना पड़ता, बल्कि उसके साथ रात गए तक जारी रहने वाली राग रंग की महफिलों में भी शरीक होना पड़ता। उसे ऑल इंडिया रेडियो भी ले जाया जाता था, जहां केसकर पंडित रवि शंकर के जरिए क्लासिकी मौसीकी की हल्की फुल्की किस्म विद्या वरंदा को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। खान साहब दिख रहे थे कि मैं उनकी बातों का भरपूर मजा ले रहा हूँ। इस मौके पर खानम ने गुफ्तगू में लुकमा दिया। बोली, वो तो बताइए कि केसकर ने हिंदुस्तानी फिल्मी मौसीकी को भी ऑल इंडिया रेडियो पर ममनू कर दिया था। खान साहब ने हाँ में सर को जुम्बिश देते हुए कहा, केसकर क्लासिकी मौसीकी का जितना रसिया है, फिल्मी मौसीकी से उतना ही बैर है, क्योंकि उसके ख्याल में फिल्मी मौसीकी में इस्तेमाल होने वाली उर्दू शायरी बेहुदा और धुन्ने मगरिब ज़दा हैं। लिहाजा उसने 1952 में ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्मी गानों का दाखिला ममनू करार दे दिया। ये पाबंदी पूरे 5 साल राइज रही, लेकिन जब रेडियो सेलोन ने हिंदुस्तानी फिल्मी गीतों से बेतहाशा कमाना शुरू कर दिया तो बिलाखिर ये पाबंदी हटाना पड़ी। मैंने पूछा, और आपके अहमद अली भाई की कैसे वहां से जान छूटी? खान साहब ने कहा, हमारे करता धरता जल्द ही भाप गए थे कि केसकर जी बस नाम के वजीर हैं और उसे नेहरू हुकूमत में कोई ज्यादा घास नहीं डालता। हत्ता कि अक्सर काबीना के इजलासों में भी उसे दावत नहीं दी जाती। नेहरू से भी उसकी कई महीनों तक जाती मुलाकात नहीं होती। जब अहमद अली की तरफ से दिफा और सलामती के हवाले से कोई कारामद मालूमात वसूल होने के इम्कानात बिल्कुल ही मादूम हो गए तो उसे मुलाजिमत छोड़ने की इजाजत दे दी गई और उन्हें कराची वापस बुला लिया गया। मगर अहमद अली बताता है कि उसे बाद में भी कई महीनों तक कानों में सितार और तानपुरे की आवाजें सुनाई देती रहीं। खान साहब की बात सुनकर मैंने कहा लगाया। फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे वापस जाने के बाद लक्ष्मण के बंगले में भी घुसना है, लिहाजा मैंने इजाजत तलब की। खान साहब ने कहा, ठीक है, मैं ये वाला माइक्रोफिल्म रोल धुलवा कर प्रिंट बनवा लूंगा, शायद जरूरत पड़ जाए। तुम दूसरे वाला माइक्रोफिल्म भी अपने पास निकाल कर रख लो। मेरा ख्याल है इतनी दिलकश तस्वीर लक्ष्मण को लगाम डालने के लिए काफी है। मैं इंशाल्लाह अभी जाकर एक मार्क 1 रेडियो ट्रांसमीटर लक्ष्मण के सिगरेट लाइटर में फिट कर दूंगा। मैं शायद कल शाम तक रागिनी के साथ उसकी गाड़ी पर श्रीनगर रवाना हो जाऊं। अपने वाला मार्क 2 रेडियो ट्रांसमीटर में साथ ले जाऊंगा ताकि लक्ष्मण वाले ट्रांसमीटर से मौसूल होने वाली गुफ्तगू सुन सकूं। तभी मुझे एक ख्याल आया। उसके साथ ही मुझे हैरत हुई कि खान साहब ने इतने अहम पहलू पर तवज्जो क्यों न दी। मैंने पूछा, खान साहब ये तो बताइए कि क्या इन ट्रांसमीटर की रेंज इतनी है कि कई मील के फासले से भी रेडियो सिग्नल्स वसूल कर सकें? मैंने पहली बार खान साहब के चेहरे पर अंदेशों की परछाइयां देखी। उन्होंने कहा, हमारे इदारे के मावन साइंसदानों ने एक खुसूसी एंटीना तैयार करके मार्क 2 ट्रांसमीटर की रेंज काफी बढ़ा दी है। मैं वो एंटीना अभी तुम्हें दे दूंगा। मेरा ख्याल है 2 मील के रेडियस में तो सिग्नल मौसूल होने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ताहम अगर लक्ष्मण वाला मार्क 1 उस दायरे से बाहर निकल गया तो मसला हो जाएगा। मैंने उनकी बात गौर से सुनी और फिर गौर करने के बाद कहा, इसका मतलब यह है कि मुझे हर कीमत पर लक्ष्मण से 2 मील के दायरे के अंदर अपनी मौजूदगी यकीनी बनानी पड़ेगी और इसका एक ही तरीका है कि मैं उसका ताक़ुब करता रहूं। खान साहब ने तायद में सर को जुम्बिश दी और कहा, अगर हमारे पास वक्त होता तो मैं किसी मार्क 3 ट्रांसमीटर का बंदोबस्त करने की भी कोशिश कर सकता था। उसकी रेंज और पावर काफी ज्यादा है। खैर, अब तो इससे ही काम निकालना पड़ेगा। मैंने उन्हें तसल्ली दी, कहा, आप फिक्र न करें, मैं संभाल लूंगा।
बस जरा रागिनी को मुनासिब अंदाज में अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। खाने से फारिग होने के बाद खान साहब ने मोटे से स्याह तार की शक्ल का एक एंटीना मेरे हवाले किया और उसे अपने रेडियो ट्रांसमीटर से मुंसलिक करने का तरीका सिखाया। उन्होंने कमजोर सिग्नल्स की सूरत में मार्क 2 की पोजीशन बदल बदल कर राब्ते की कोशिश के तरीके भी समझाए। बिलाखिर मुझे रुखसत करते हुए उन्होंने कहा, सबसे पहला मरहला लक्ष्मण के सिगरेट लाइटर में मार्क 1 को पोशीदा करना है। मुझे उम्मीद है तुम्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। फिर भी मैं 2-2.5 घंटे बाद 1-2 सेकंड के लिए तुम्हारे मार्क 2 पर राब्ता करूंगा और तुम मेरी तरफ से किसी बात का इंतजार किए बगैर सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दोगे, यस या नो। मैं समझ जाऊंगा। मैंने कहा, फिक्र न करें, इंशाल्लाह यस में ही जवाब मिलेगा। खान साहब और खानम से रुखसत होकर मैं अपने ठिकाने पर पहुंचा तो अरुण को मुस्तैदी से पहरा देते पाया। उसने एक बार ही की लग़ज़िश से सबक सीख लिया था। मेरी गाड़ी पर नजर पड़ते ही उसने गेट खोल दिया और मुस्तैदी से सैल्यूट किया। मैंने सर हिलाकर जवाब दिया और गाड़ी को उसकी पार्किंग में ले जाकर खड़ा कर दिया। बंगले में हर तरफ गहरा सन्नाटा था, जबकि अनेक्सी वाले पहलू और अकब में तो लगभग मुकम्मल तारीकी थी। मैं वहां ठहर कर कुछ देर आसपास की सुनगुन लेने की कोशिश करता रहा, फिर मुतमईन होकर बंगले की अकबी समत में रसोई घर की तरफ चल पड़ा। मुझे अंदर दाखिल होने में कोई मुश्किल न हुई। मैं राजीव के कमरे में पहुंचा तो वो हस्बे मामूल घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं सीधा अंदर घुसता चला गया। निचली मंजिल पर वाक़े वसी नशिस्तगाह में पोशीदा मार्क 1 ट्रांसमीटर को उसके ठिकाने से निकालने में मुझे ज्यादा दुश्वारी न हुई। उसके बाद मैं बेआवाज कदमों से जीने चढ़ता हुआ ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। मेरे एक तरफ रागिनी की ख्वाबगाह थी, जबकि सामने लक्ष्मण वाले बड़े कमरे का बंद दरवाजा दिखाई दे रहा था। मुझे अपनी मंजिल का पता था, लिहाजा मैंने सीधा लक्ष्मण की ख्वाबगाह का रुख किया। मैंने एहतियात से दरवाजे का लट्टू घुमाया तो हस्बे तवक्को बआसानी दरवाजा खुल गया। मैंने दरवाजे के खला से अंदर झांका। ख्वाबगाह में कम ताकत का कुमकुमा मध्यम रोशनी बखेर रहा था, तहम ख्वाबगाह का अहवाल बखूबी दिखा रहा था। मुझे मसहरी पर सिर्फ एक इंसानी वजूद देखकर हैरानी हुई। कंबल में लिपटा शख्स बिलाशुबा लक्ष्मण था। वहां यकीनन भरपूर अंदाज में शैतानी खेल खेला गया था, लेकिन उसके बाद शायद रागिनी अपनी ख्वाबगाह में चली गई थी। मैंने सोचा इसकी मुमकिना वजह सुबह सवेरे राजीव के हाथों मायूब हालत में पकड़े जाने का खदशा भी हो सकता है। बहरहाल इस गैर मुतवक्के सूरत हाल से मेरे लाहे अमल पर कोई खास असर नहीं पड़ा था, बल्कि पकड़े जाने का खतरा आधा हो गया था। मैंने एक बार लक्ष्मण के गहरी नींद में होने की तस्दीक की और दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। लक्ष्मण सीने तक कंबल में लिपटा हुआ था और वो दाएं करवट लेटा हुआ था। मैंने उसकी पुश्त की जानिब खड़े होकर उसके कीमती सिगरेट लाइटर की तलाश में नजरें दौड़ाईं। वो सामने ही मसहरी की बगली मेज पर 555 ब्रांड सिगरेट के पैकेट के साथ सर उठाए खड़ा दिखाई दिया। मध्यम रोशनी के बावजूद उसका सुनहरा रंग जगमगाता सा महसूस हुआ। मैं लक्ष्मण पर नजर रखते हुए बेआवाज कदमों से आगे बढ़ा। मैंने सिगरेट लाइटर उठाने से पहले वो मकाम ज़हन नशीन कर लिया जहां वो रखा हुआ था। सिगरेट लाइटर उठाते ही मैं तेजी से गुस्लगाह की तरफ बढ़ा और अंदर घुसकर दरवाजे में अंदर से कुंडी लगा ली। वो कुशादा जगह लक्ष्मण और रागिनी के शाहाना तर्जे जिंदगी की बखूबी अक्कासी कर रही थी। मैं सीधा दीवार गिर आईने के सामने रखे स्टूल की तरफ बढ़ा और सिगरेट लाइटर को हाथ में लेकर बगौर उसका जायजा लिया। मुझे खान साहब की फरासत पर रश्क महसूस हुआ। वो सिगरेट लाइटर उसी ब्रांड का था, ताहम उसकी साख्त में थोड़ा सा फर्क था। शायद एक आध साल पहले या बाद का मॉडल हो, अलबत्ता उसे खोलने का तरीका वही था। मैंने सिगरेट लाइटर खोलकर सामने मौजूद छोटी सी मेज पर रखा और फिर अपने साथ लाए हुए मार्क 1 ट्रांसमीटर के साथ मसरूफ हुआ। नाखूनों के साथ पेच खोलने में मुझे कुछ मुश्किल तो पेश आई, लेकिन मैं ट्रांसमीटर का बैरूनी खोल खोलकर अंदर से नन्ना सा माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और ट्रांसफॉर्मर्स एहतियात से निकालने में कामयाब हो गया। मैंने पूरा ख्याल रखते हुए कि उन नाजुक पुर्जों का बाहमी रब्त टूटने न पाए, उन्हें सिगरेट लाइटर की खोखली बॉडी में फ्यूल की ट्यूब के साथ रख दिया और इर्द गिर्द की जगह पुर करने के लिए कागज के पुर्जे ठूस दिए। खान साहब ने उम्मीद जाहिर की कि सिगरेट लाइटर का धाती खोल उस ट्रांसमीटर के लिए उम्दा एंटीने का काम देगा। मुझे सिगरेट लाइटर को दोबारा बंद करने में कोई मुश्किल न हुई। मैंने उसे हाथ में लेकर जांचने की कोशिश की। मुझे उसके वजन में कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और मार्क 1 ट्रांसमीटर का खोल उठाकर जेब में डाल लिया। मैं उसे वहां भूल जाता तो लक्ष्मण सुबह होते ही हंगामा खड़ा कर देता।
मैंने गुस्ल खाने से बाहर निकलने से पहले झांक कर देखा तो ख्वाबगाह के मंजर में कोई तब्दीली नजर न आई, हत्ता कि लक्ष्मण ने करवट भी न बदली। मैं बेआवाज लेकिन तेज कदमों से आगे बढ़ा और सिगरेट लाइटर को उसकी साबिका जगह पहले की तरह खड़ा छोड़कर लक्ष्मण की ख्वाबगाह से निकल आया। कुछ ही देर के बाद मैं अपने कमरे में पहुंच गया। मेरा दिल खुशी और इत्मीनान के मिले जुले जज्बात के साथ धड़क रहा था। कुछ देर सांस बहाल करने के बाद मैंने अपना मार्क II रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर निकाला और खान साहब के दिए हुए एंटेना को उसके पहलू में मौजूद सुराख नुमा खांचे में डालकर धीरे से अंदर धकेला। जरा सी कोशिश से वो बाआसानी अंदर फिट हो गया, ताहम उसे बाआसानी अलहदा किया जा सकता था। मैं अपना मार्क II पहलू में रख कर बिस्तर पर दराज हो गया। मेरा जिस्म और आसाब नींद का मुतालिबा कर रहे थे, ताहम मुझे खान साहब की तरफ से राब्ते का इंतजार था। मुझे पता ही न चला कि कब मेरी आंख लग गई। मैं सीटी की आवाज सुनकर जागा। मैंने देखा मेरा ट्रांसमीटर रिसीवर मेरी तवज्जो मांग रहा है। मैंने ईयरफोन जल्दी से कान में लगाया। दूसरी तरफ खामोशी थी। मैंने अपने लहजे की खुशी दबाते हुए बदली हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, यस। अगले ही लम्हे राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं लंबी तान कर कम से कम दोपहर तक नींद पूरी करने का इरादा रखता था, लेकिन अलग सुबह जागने की आदत की वजह से ताखीर से सोने के बावजूद सुबह 9 बजे मेरी आंख उचट गई। मैंने बिस्तर छोड़ दिया और जीने के दरवाजे की कुंडी उतार कर तहारत गाह का रुख किया। मैं वहां से फारिग होकर अपने कमरे में पहुंचा ही था कि राजीव नाश्ता लेकर आ गया। मैंने खुशगवार लहजे में उसका खैर मकदम किया और लक्ष्मण और रागिनी की सुनगुन लेने के लिए पूछा, राजीव भैया, बंगले में क्या चल रहा है? तुम्हें मालूम है ना कि हमारा मालिक और मालिकन कश्मीर की सैर करने जा रहे हैं? राजीव ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, बिल्कुल पता है रोहित भैया, तुमने तो नहीं बताया, परंतु हमें तो ये भी मालूम है कि तुम भी जा रहे हो श्रीनगर। उसके लहजे में हल्की सी शरारत तो थी, अलबत्ता मुझे हसद की झलक महसूस न हुई। मैंने कहा, हम तो हुक्म के गुलाम हैं राजीव भाई। लक्ष्मण जी और रागिनी ने कहा, मैं इनकार कैसे करता, मेरा काम तो रागिनी देवी को उनकी गाड़ी में श्रीनगर पहुंचाना है। मैं इस दौरान में नाश्ते से भरपूर इस्तिफादा कर रहा था। राजीव पहले तो झिझका, लेकिन फिर हिम्मत करके बोल ही पड़ा, अब ऐसा भी नहीं है रोहित भैया, ड्राइवर तो यश है बंगले का, उसे रागिनी मैडम को श्रीनगर ले जाने का आदेश क्यों नहीं दिया लक्ष्मण जी ने? मैं अच्छी तरह समझता हूँ, अब इस घर में तुम्हारी पोजीशन कुछ और है भाई, इतनी अकल तो भगवान ने दे ही रखी है। मैंने अनजान बनते हुए कहा, तो तुम्हारे ख्याल में मेरी पोजीशन क्या है राजीव भाई? उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही स्पेशल भैया, और मैं इससे बहुत खुश हूँ। भगवान करे तुम्हारी वजह से ही रागिनी मैडम अपने जीवन में अच्छा बदलाव ले आए। मैंने पूरी और भुजिया का बड़ा सा निवाला हलक से उतार कर कहा, भगवान करे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए और मैं इस कुंबे के भले के लिए अपना कुछ किरदार अदा करने में कामयाब हो जाऊं। अचानक उसे कुछ याद आ गया और उसने कुछ तशवीश भरे लहजे में कहा, लेकिन इस वक्त लक्ष्मण जी और रागिनी मैडम दोनों का मूड खराब है। नाश्ते पर भी झगड़ते रहे और अब रीडिंग रूम में भी आपस में उलझ रहे हैं। मैं ये सुनकर चौंका, लेकिन अपना तजस्सुस छुपाते हुए कहा, दोनों में अपनायत भी तो बहुत है। जाहिर है ऐसे में ख्यालात का टकराव भी होता ही है। कुछ पता है कि किस बात पर विरोध चल रहा है उनका? राजीव ने जवाब में शाने उचकाकर अपनी माजूरी का इजहार किया। बोला, पता नहीं, मेरे सामने उन्होंने हर बार बात रोक दी, लेकिन उनके बिगड़े तेवर सब कुछ साफ साफ बता रहे हैं। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, भाई बहन हो या मियाँ बीवी, जहाँ 4 बर्तन साथ हों खड़कते ही हैं। मैं खुद को पुरसुकून जाहिर कर रहा था, लेकिन दर हकीकत मेरे जहन में तजस्सुस का तूफान उठ खड़ा हुआ था। मैं ये जानने के लिए बेकरार था कि उन दोनों में किस बात पर झगड़ा हो रहा है। हो सकता है ये मालूमात मेरे मिशन की कामयाबी में कारआमद साबित हो। मैंने राजीव को ये कहकर रोक लिया कि वो बर्तन साथ लेकर जाए ताकि दोबारा चक्कर न लगाना पड़े। फिर हत्तुल इम्कान तेजी से नाश्ते से फारिग हो गया। राजीव के जाते ही मैंने जीने के दरवाजे में कुंडी लगाई, अपना मार्क II ट्रांसमीटर निकाला और उसका ईयरफोन कान में लगाकर मुतल्ला गाह वाली मार्क I ट्रांसमीटर से राब्ता कायम करने की कोशिश की। अगले ही लम्हे मुझे रागिनी की नाराजी भरी आवाज सुनाई दी। वो खालिस गोरों वाले लहजे में इंग्लिश बोलते हुए कह रही थी, देखो लकी, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि शर्म हया, पाकीज़गी, इस्मत और इफ़्फ़त जैसे फजूल अल्फाज मेरे लिए बहुत साल पहले अपने मानी खो चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी हरगिज नहीं है कि मैं कोई बाजार में रखी हुई चीज बन गई हूँ जिसे कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा जब जी चाहे उठाकर बरत ले। जज्बाती और जिस्मानी ताल्लुक कायम करने के हवाले से मेरा मेयार बहुत बुलंद है। मैं अपने ज़ौक़े जमाल पर पूरी न उतरने वाली कोई चीज अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐन उसी वक्त लक्ष्मण ने उसकी बात काट दी और खफगी और बेचारगी के मिले जुले तासुरात के साथ कहा, रागिनी प्लीज, मैं एक बार फिर दरखास्त करता हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे पक्का यकीन है कि वो महज एक हसीन औरत की खास तवज्जो से अपनी जज्बाती महरूमियों का इजाला करना चाहता है। मैं कब कहता हूँ कि तुम उससे जिस्मानी ताल्लुक कायम करो?
और मेरा ख्याल है वो खुद भी इस हद तक जाने की कोशिश नहीं करेगा। अचानक उसका लहजा बदला और उसने हल्का सा कहकहा लगाकर अपनी बात आगे बढ़ाई। बोला, बल्कि ऐन मुमकिन है कि वो ममनुआ हद से आगे जाने के काबिल ही ना हो। रागिनी ने खिलाफ मामूल उसकी हंसी में साथ न दिया। वो बोली तो उसका लहजा बदस्तूर, बेलचक और खुश्क था। बोली, तुम्हारी इस फरमाइश पर मेरा सारा एतराज ही ये है कि खुद को खिलौना बनाकर उस बुढ़े फूस के सामने पेश करना मेरी नस्वानियत की बदतरीन तौहीन है। मुझे तो ये सोचकर ही घिन आ रही है कि गंजा, काला, करेले जैसा बंदा मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। तुम मुझे उस इंजीनियर जैसे हैंडसम और सेहतमंद बंदे के साथ वक्त गुजारने का कहो तो मैं फौरन हाँ कह दूं। यही वो मरहला था जब मुझे अपने बढ़ते हुए तजस्सुस से निजात मिली कि वो दोनों आखिर किसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके साथ ही मुझे उनकी गुफ्तगू का मौजू और उनके इख्तिलाफ की वजह भी समझ में आ गई। वो दोनों हिंदुस्तान के 65 साला वजीर कृष्णा मेनन की बात कर रहे थे, और जहां तक मैं समझ सका था, लक्ष्मण चाहता था कि रागिनी उस दिल फेंक बुढ़े की किसी मुमकिना जिस्मानी पेशरफ्त को मुस्तरद करने की बजाय उसकी हौसला अफजाई करे। उसे यकीनन बदले में भारी फायदे की उम्मीद रही होगी। रागिनी ने जो कुछ कहा था वो एक तरह से फैसला कुन हैसियत रखता था। वो दोनों पहले भी इसी मौजू पर गर्मागर्म बहस मुबासा करते रहे थे, जो कई बार तलखियों की बुलंदी पर पहुंची होगी। रागिनी बज़ाहिर अपने मौक़िफ़ से टस से मस न हुई थी, लेकिन लक्ष्मण अपनी बहन की तरफ से मुसलसल कोरा जवाब मिलने के बावजूद अभी तक हार मानने को तैयार न था।